آمین الحمدللہ رب العالمین. مدرسہ ام القرا یونیورسٹی ام القرا، دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں علم. سعودی عرب کا سب سے بڑا مدرسہ یہ ہے مدرسہ ام القرا. طرف گورے مدرسہ ام القرا سعودی عرب کا سب سے بڑا مدرسہ. میرے عزیزو، یہ ہے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. یہ عرفات کا میدان ہے. ہماری آج کی جو ہے وہ دوسری زیارت ہے عرفات کا میدان. 9 ذی الحجہ کو سارے حاجی یہاں پر جمع ہوتے ہیں. یہ جبل رحمت جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یہ وہ مقام ہے سامنے. یہ ہے جبل رحمت. حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ ادھر قبول ہوا تھا. اس پہاڑی کے اوپر آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا تھا. یہ سامنے گنبد جو نظر آتے ہیں دیکھیے، یہاں پر اسی جگہ پہ کیا تھا. یہ عرفات کا میدان ہے اور یہ ہے جبل رحمت. آدم علیہ السلام کا توبہ ادھر قبول ہوا تھا. نبی علیہ السلام کا یہ 5 ساڑھے 5 گھنٹے ادھر شام میں گنبد جو ہے یہاں پر مسجد نمرہ. یہ سیدھے خط پہ دیکھو 6 مینار والی مسجد. اس کی دو آگے میناریں جو ہے یہ عرفات سے باہر ہے. یہ 4 میناریں عرفات کے اندر ہے. حاجی اس میں صرف 2 نمازیں ظہر اور عصر کے پڑھتے ہیں اور حج کا خطبہ اس میں دیا جاتا ہے. سال میں 1 مرتبہ کھول دی جاتی ہے. نام ہے اس کا مسجد نمرہ. قریب سے انشاءاللہ اس کا زیارت کریں گے. مسجد نمرہ یہ سارا سال بند رہتا ہے، صرف حج کے لیے کھول دی جاتی ہے بس. پہاڑی کے دامن میں نہر زبیدہ. یہ نہر زبیدہ یہ عرفات سے لے کر عراق سے آئی ہے عرفات تک اس میں پانی آ رہا ہے. یہ نہر زبیدہ یہ داخلی طرف تو گورے دا نہر دے نہر زبیدہ. حرام بھی اسے کہتے ہیں. یہ ہے مسجد المشعر الحرام مزدلفہ. یہ مسجد صرف حج کی دن کھول دی جاتی ہے. صرف حج کے دن اس کو کھول دیا جاتا ہے. تو یہ ہے مسجد مشعر الحرام اور یہ ہے مزدلفہ کا میدان. اسی میدان میں آج رات گزارتے ہیں اور اسی میدان میں صبح وقوف کرتا ہے. یہاں سے پھر جمرات کے رمی شیطانوں کو مارنے کے لیے مینا کی طرف حاجی روانہ ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ پاک ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھو میرے عزیزو، مذاکرات کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا. تو عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے اونٹوں کے تلاش میں آیا ہوں. ابراہیم نے کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہو. تو اس نے ایک جملہ ادا کیا. کیا جملہ تھا کہ وہ جانے اور اس کا گھر جانے، وہ خود اپنے گھر کا حفاظت کر سکتا ہے، میں تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ابابیل ابرہہ کے اوپر مسلط کر دیا. ابابیل جو قرآن مجید میں ایک سورت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
हाँ उसके अबाबील यानी तो तकर की पप्पो के तो तकर की अबाबीलों की वजह से उनको निस्फ नाबूद कर दिया। तो ये जगह आगे इस्तिग़फ़ार के साथ जाना है। सारे साथी अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये जगह है अब्रा हैदर तबाह बर्बाद हुआ था इस जगह पे। अगला मकाम का है हमारा, यहाँ हाथियों का लश्कर तबाह हो गया था इधर। सलाम को ज़बा के लिए लटाया था, तो उसका नाम है मकाम ज़बी है इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से मेंढा भेजा और इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाया। कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाया। तो अभी ये उल्टे हाथ पे पहाड़ी की तरफ देखो एक गुंबद बना हुआ है। अभी ये गाड़ी आहिस्ता हो जाएगा और ये पुल के नीचे देखो, ये देखो उल्टे तरफ देखो जी, वो गुंबद नजर आ रहा है पहाड़ी के साथ। दस तरफ तो गोरे गुंबद पर नजर राजी, ये है मकाम ज़बी है इस्माइल अलैहिस्सलाम। मदीजे बंद इसी जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिटाया था। ये है मकाम ज़बी है इस्माइल, मकाम ज़बी है इस्माइल। सबने ज़ियारत किया, सबने ज़ियारत किया जी। अभी आगे हमारा ज़ियारत है मस्जिद हैफ, 4 मीनार वाली मस्जिद हैफ। अगला हमारा ज़ियारत है मस्जिद हैफ, 4 मीनार वाली मस्जिद। सिर्फ हज के मौका पर खोल दी जाती है 4 मीनार वाली मस्जिद। और 12 ज़िलहज जाके रमी करके शैतानों को मार कर उसके बाद फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो ये वो शहर है जो 3 दिन 3 रात के लिए आबाद कर दिया जाता है। तो मेरे अजीजों, टोटल हज 5 दिन का होता है, टोटल हज 5 दिन का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको यहाँ पर हज की तौफीक अता फरमाए कि हम सब यहाँ आ जाए। अभी उल्टी तरफ देखो, ये मीनार नजर आते हैं, ये 4 मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद हैफ। यहाँ 70 अंबिया अलैहिस्सलाम भी दफन है। और वो सामने, वो बिल्कुल सामने वो छतरी नुमा बिल्डिंग है, ये है जमरात, वो है जमरात, वो जमरात है। देखो 4 मंजिला बिल्डिंग है। ये शैतान यहाँ पर बांधी गई है, यहाँ पर हाजी शैतानों को मारते हैं। ये है जमरात। और ये सीधी तरफ वादी मीना, सीधी तरफ देखो खूबसूरत मंजर वादी मीना का। ये खेमे देखो, खूबसूरत मंजर वादी मीना। हाजी हजरात इस खेमों में क़ियाम करते हैं। हज के मौका पर ये शहर आबाद होता है। ये सिर्फ हज के मौका पर आबाद होता है। हज के बाद ये इसमें इंसान ही नजर नहीं आते, बिल्कुल ये बिल्कुल खामोशी होता है यहाँ पे। ये सिर्फ हज के मौका पर आबाद करते हैं। मीना, वादी मीना। और यहाँ पर मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। का खूबसूरत मंजर देखो, लाखों इंसान इसमें समा जाते हैं। ये मीना का खूबसूरत मंजर। मेरे अजीजों, जब हज के मौका पर मुज़दलिफा से हाजी आता है, शैतानों को कंगरिया मार, इस मैदान में उन्होंने अदालतें लगाई और इंसाफ के साथ निस्बत फैसले की। इसलिए उस जगह को मस्जिद आदल, मैदान आदल कहते हैं। उसके साथ मकबरा है, साथ में मकबर आदल, जिसने आदल किया। आदिल लोग इसी में दफन है, आदिल लोग उस मकबरे में दफन है। उसके बाद हमारा अगला फिर होगा मकबरे जन्नतुल बाला, वो कब्रिस्तान जो इस्लाम की दूसरी पानी की बोतल इधर उधर बच्चों की तरफ
इज़्ज़त का जिक्र अस्कार करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ राज नियाज़ किया करते थे। जिब्राइल अमीन ने अल्लाह की तरफ से वही लाया और फरमाया पढ़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरे अजीज़ों ये सीधे हाथ पे देखो, सीधे हाथ पे ये एक छोटा पहाड़ी है, एक बड़ा पहाड़ी है। ये छोटा पहाड़ी जबल जिब्रील है और उसके साथ ये बड़ा पहाड़ी जो है इसको जबल नूर का कहा जाता है, जबल नूर। अभी इसके रास्ता बना रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह ने तौफीक दी आ गए तो इंशाल्लाह गाड़ियों में ऊपर जाएंगे। ये पहला पहाड़ी है जिस पे ये रोड बना हुआ है, इसको कहते हैं जबल जिब्रील। और ये दूसरा पहाड़ी है जबल नूर गारे हिरा। इस पर चढ़ने के लिए 1.5 घंटा लगता है और उतरने के लिए 1 घंटा। जिसको आना हो तो वो सवेरे सवेरे आकर ये 1.5 घंटे में इंशाल्लाह आराम से चढ़ जाएंगे। ये ऊपर लोग हैं, देखो नजर आ रहे, बिल्कुल ऊपर जो है वो चाय का होटल है, ऊपर चढ़ो आराम से बैठो, वहाँ चाय वगैरह पी लो, फिर नीचे गार की तरफ जाओ। जबल नूर मैदान आदल, ये मैदान जो है इसको मैदान आदल कहते हैं। यहाँ पर सजा जजा वाला काम था। मैदान आदल, मस्जिद आदल। मुजरिमों का हाथ काटना, सर काटना इसी मैदान में क्या करते थे। सामने है मस्जिद अदल और ये है मैदान अदल। और इसके बाद आते हैं मुखबर आदल, वो आदिल हुक्मरान, वो आदिल काजी जिसने इसी मैदान में यहाँ पर अदल का अदालत लगाया और उनके इंतकाम। या अहले मोहल्ला अस्सलामु अलैकुम, या खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये मोहल्ला कब्रिस्तान है, सीधी तरफ देखो, ये मोहल्ला कब्र, इसके आखिर में ऊपर की तरफ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का कब्र है। ये दरमियान में रोड है, रोड के इस तरफ भी मोहल्ला कब्रिस्तान है। और ये आगे आ रहा है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन वो मस्जिद है जहाँ पर जिन्नात ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर सीधी तरफ देखो, ये मस्जिद है एक मीनार वाली मस्जिद जिन। सबने देख लिया ना मस्जिद जिन। जब फतेह मक्का हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और मक्का को फतह कर लिया। तो फतह मक्का के वक़्त फतह का झंडा, फतह का झंडा जिस जगह पर लगाया गया वो ज़रात पे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुके हैं। और इंशाल्लाह कल असर के बाद साथी याद से इंशाल्लाह साथ आ जाए। ये पैदल जो ज़ियारत है इंशाल्लाह कल असर के बाद पैदल ज़ियारतें करें इंशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारतें कंप्लीट हो गई, अब होटल के पास जा रहे हैं। और भाई ज़ियारतें हमने कर ली हैं, अभी हम आ रहे हैं ज़ियारतों से होटल की तरफ। तो आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा। हमने भी ज़ियारतें करी, मैंने आपको भी दिखाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको भी यहाँ बार बार आना नसीब फरमाए। और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ ही, आप होटल देख लें।